Good evening, class. So, in our chemistry, we were studying the chapter 2 structure of atom. In the previous class, we have studied about the Bohr's model of atom. We were continuing our topic Bohr's model. Okay, after the failure of Rutherford, Bohr gave his model as per the hydrogen spectrum, where he studied about the spectrum of the different elements, and on the basis of which he substituted his model. And we have read his four postulates in which he given the theory about the stationary orbit on the basis of angular momentum. Okay, and in the previous class we have calculated the radius of the hydrogen atom, that is also known as the Bohr's radius, where this concept was, where the formula of the Bohr radius was 0.529 into n square upon z. Okay, a naught is for the hydrogen atom, it's only 0.529. There n square upon z is not included. For the other atoms we include n square upon z, where n is the number of the shell and z is the atomic number of that particular atom. Now we have to calculate the energy of an electron, कि किसी भी स्टेशनरी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है उसके पास कितनी एनर्जी होती है, क्योंकि उसी के बेसिस पे हमें देखना है कि वो इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी है, तभी वो अपनी ऑर्बिट से आउट में आएगा. ओके, so any object has two types of energy. First is potential energy, second is kinetic energy. So what is potential energy? The energy possessed by a body in its stationary state. ठीक है, and kinetic energy is energy possessed by a body in its excited state or in its moving state. Okay, so potential energy of an electron is given by potential energy of an electron is equal to minus k z e square upon r. ठीक है, लास्ट इन प्रीवियस क्लास व्हाइल डिराइविंग द इक्वेशन फॉर द रेडियस ऑफ एनी एटम हमने एक कूलम्ब्स फोर्स पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो न्यूक्लियस होता है एक फोर्स से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, दैट वाज माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. ओके, so potential energy is given as minus k z e square upon r. Here negative side denote कि इलेक्ट्रॉन जो है उसमें बाउंडेड है, उसको बाहर आने के लिए एनर्जी चाहिए तभी वो बाहर आएगा. So here negative side denote that it is bounded to something and we have to work against that energy to pick it out. And kinetic energy of an electron is given as half mv square, हाफ एम वी स्क्वायर. ठीक है, तो टोटल एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. यू मस्ट नोट इट डाउन बिकॉज आई एम रबिंग द अपर पोर्शन. सो एनर्जी, टोटल एनर्जी कैन बी रिटन एज एनर्जी दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर minus k z e square upon r. If you have noted down the derivation of the radius of any atom, there we have learned a equation that was mv square is equal to minus k z e square upon r. क्योंकि हमने वहां पे क्या किया था, सर्कुलर मोशन का जो फोर्स रहता है, ठीक है, सर्कुलर फोर्स को कूलम्ब्स फोर्स से कंपेयर किया था, तो वहां पे था mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू माइनस k z e स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर. r and r get cancelled, so mv स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस k z e स्क्वायर अपॉन r. सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ mv स्क्वायर इन इक्वेशन 1, यहां पे mv स्क्वायर की जगह मैं इसको प्लेस कर देता हूं. ओके, सो इट इज इक्वल टू minus kz e square, no it was not, it was only, sorry, mv square is equal to kz e square upon r था. ठीक है, हमने जो कंपेयर किया था वो इसके हिसाब से था, वो माइनस नहीं रहेगा. kz e square upon 2r, क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाइड हो जाएगा, माइनस kz e square upon r. ठीक है, तो जब हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो के जेड ई स्क्वायर और के जेड ई स्क्वायर माइनस 2 के जेड ई स्क्वायर हो जाएगा. तो जब इसको माइनस करते हैं तो ये आ जाता है माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r. क्लियर? तो एनर्जी जो आ रही है वो मेरी इतनी आ रही है. सो व्हाट डज द नेगेटिव साइन एक्सप्लेन? नेगेटिव साइन एक्सप्लेन दैट इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड टू द न्यूक्लियस एंड वी हैव टू पिक द इलेक्ट्रॉन आउट, सो वी हैव टू प्रोवाइड द एनर्जी. यानी इलेक्ट्रॉन हम क्या कर रहे हैं, किसी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं,
किसी को निकाल रहे हैं तो हम हमारी जो एनर्जी रहती है नेगेटिव रहती है, यानी इसको एनर्जी चाहिए तभी वो बाहर आ पाएगा अपने ऑर्बिट से। सो यू मस्ट रिमेंबर कि नेगेटिव साइड डिनोट दैट एनर्जी इज रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन टू कम आउट ऑफ द ऑर्बिट। नाउ वी हैव लर्न द वैल्यू ऑफ आर इन, नाउ आई हैव रिटन कि बोहर्स रेडियस जो था वो इतना था। सो प्लेसिंग द वैल्यू ऑफ के ई स्क्वायर एंड आर, सो putting the value of putting r is equal to 0.529 n square upon z, ठीक है, इस पे वैल्यू रख देते हैं। सो it will be energy is equal to minus k z e square upon 2 into आर की जगह ये लिख दिया 0.529 इंटू एन स्क्वायर, एंड जो डिनोमिनेटर में जेड है वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है, एंड प्लेसिंग द वैल्यू ऑफ के दैट इज इक्वल टू यूजुअली ये नैनोमीटर में रहता है, तो आपको याद रखना है कि जो रेडियस था वो नैनोमीटर में है, ठीक है, 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड ये नैनोमीटर में रहता है, ठीक है। सो हमें इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो इट विल बी 10⁻⁻⁹ भी मल्टीप्लाई होगा नैनोमीटर में मीटर को कन्वर्ट करने के लिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ के एस 9 × 10⁻⁹, जेड की वैल्यू हमें नहीं मालूम है, सो जेड × जेड जेड स्क्वायर, ई वैल्यू इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का स्क्वायर होल अपॉन 2 into 0.529 into n square into 10⁻⁻⁹, ठीक है। So we have to place this value. Our value of E comes, E is equal to minus 21.8 into 10⁻⁻19 z square upon n square जूल पर एटम, ठीक है, ये इस वैल्यू में रहती है, ठीक है, ये जूल में आ गया। हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी अगर चाहिए तो वी डिवाइड दिस इक्वेशन बाय 1.6 into 10⁻⁻⁹, सो द आंसर इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी -13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन, यानी एक हाइड्रोजन एटम के अंदर का, यदि आई कंसिडर फॉर ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम के लिए n की वैल्यू भी 1 है, z की वैल्यू भी 1 है। So for the hydrogen atom, -13.6 electron volt is the energy of that electron. It means we have to provide the minimum 13.6 electron volt energy for the to the hydrogen for the emission of electron. तभी उसका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अपनी ऑर्बिट से बाहर आएगा। For hydrogen atom, n is equal to 1, z is equal to 1, so E is equal to -13.6 into 1 square upon 1 square electron volt, so it is -13.6 electron volt, and thus ये क्या बताता है कि इतना एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को चाहिए तभी वो बाहर आएगा, यानी उसको -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिले, उसको 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दूंगा तो ये जीरो में पहुंच जाएगा। इट मींस अब इलेक्ट्रॉन बाहर आने के लिए रेडी है, तो एक्स्ट्रा एनर्जी क्या प्रोवाइड करेगी, इसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगी, एज वी हैव लर्न इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। So this was the derivation for the Bohr's model for the radius and the energy. Here you can also calculate the velocity also. Velocity by using the equation from mv square upon r is equal to kz square या nh upon 2 pi वाला, वो यूज करके आप इसकी वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हो। So here the Bohr was able to calculate the energy of an electron, radius of an atom, and also he was able to calculate the angular momentum, ठीक है, वो एंगुलर मोमेंटम भी कैलकुलेट करने में सक्सेस रहा, एंड आल्सो द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो व्हाट वर द मेरिट्स ऑफ बोहर्स मॉडल? बोहर्स मॉडल का मेरिट था कि इसने प्रॉपर्ली एक स्ट्रक्चर दे दिया कि इलेक्ट्रॉन्स जो है कि स्टेशनरी ऑर्बिट में रहते हैं, उनका एंगुलर मोमेंटम उसने बता दिया, रेडियस बताया, एनर्जी बताया, एंड इट वर्क फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आल्सो, एंड इट वाज अ सक्सेसफुल। बट डीमेरिट्स ये था कि बोहर्स का जो मॉडल था वो केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ही अप्लाई हो रहा था,
सिंगल इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के ऊपर अप्लाई हो रहा था, लाइक हाइड्रोजन विच हैज ओनली वन इलेक्ट्रॉन, He plus which has only one electron, Ni2 plus which has only one electron and Be3 plus which has only one electron. तो इससे ज्यादा यानी जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, जैसे कि हीलियम प्योर स्टेट में, हीलियम क्योंकि He के पास 2 है लेकिन He प्लस के पास 1 है, तो जिनके पास दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है उस केस में बोहर्स का ये मॉडल जो था, थ्योरी जो थी, फेल हो जा रही थी. सेकेंड, उस दौरान एक और थ्योरी आई, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, in which he told it is not possible to calculate the momentum and velocity of an electron at a similar time. ठीक है कि आप एंगुलर मोमेंटम और वेलोसिटी एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, तो बोहर्स ने ये कैसे कर लिया? सो ही वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन दिस आल्सो, व्हिच वी हैव टू लर्न नाउ कि क्या था उस हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में. सो बोहर्स मॉडल, your radius, calculating the radius and its derivation is very important. Calculation of energy is also very important and you have to learn its merits and demerits, so you have to study the theory from the book very deeply. Okay, right. So now as we were learning that there was a great debate regarding the particle as well as wave nature of the electron. ठीक है कि इलेक्ट्रॉन आपका वेव नेचर का है, इलेक्ट्रॉन इज आइदर वेव नेचर आइदर पार्टिकल. ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा था? क्योंकि वेव नेचर के थ्रू जो प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन हो रही थी, डायफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस, वो पार्टिकल नेचर के थ्रू नहीं हो रही थी, एंड पार्टिकल नेचर के थ्रू जो प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन हो रही थी वो वेव नेचर के थ्रू नहीं हो रही थी, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो ये एक्सप्लेन नहीं हो रही थी. ठीक है, तो इसमें इश्यू चल रहा था जहां पे उन्होंने कहा कि एक वेव की जो एनर्जी होती है E is equal to h mu के बराबर होती है, where mu is the frequency of any electromagnetic radiations, h is the Planck constant. Whereas in the particle, Einstein given the theory that energy of any electron is mc square, where m is the mass of the electron and c is the velocity of the electron. ठीक है, वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट किया? बोहर मॉडल्स के थ्रू उन्होंने कैलकुलेट किया था, जो कि अप्रोक्सीमेटली एक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी आती है वो होती है 2.18 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ठीक है, जैसे हमने रेडियस और एनर्जी कैलकुलेट किया, आप उसमें वैल्यू प्लेस करेंगे तो आपकी ये वैल्यू भी आ जाएगी. सो उसने कैलकुलेट किया था. सो अपार्ट फ्रॉम दिस डेरिवेशन, दिस डिबेट, देयर केम अ डल नेचर ऑफ पार्टिकल थ्योरी. क्या आया? डल नेचर ऑफ पार्टिकल की थ्योरी है. ठीक है, जो कि दी गई डी ब्रोगली के द्वारा. डी ब्रोगली, तो डी ब्रोगली ने, जिसको आप पढ़ते हैं डी ब्रोगली इक्वेशन के नाम से हम लोग स्टडी करते हैं डल नेचर ऑफ पार्टिकल को, तो उसने क्या किया? इन दोनों फॉर्मूलेस को कंबाइन किया. उसका ये कहना था इलेक्ट्रॉन कभी कभी वेव की तरह भी एक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन कभी कभी पार्टिकल की तरह भी एक्ट करता है, डिपेंडिंग ऑन दिस प्रॉपर्टीज, कि उसको कब कैसा बिहेव करना है. सो डी ब्रोगली, ही वाज अ वेरी फेमस साइंटिस्ट. इसने रदरफोर्ड के साथ भी वर्क किया हुआ था एंड ही आल्सो वर्क विद द बोहर्स टू. ये दोनों के साथ वर्क करके इसने इस थ्योरी को डेवलप किया. नाउ व्हाट वाज द डी ब्रोगली इक्वेशन? सो डी ब्रोगली ने क्या किया? He took the combination of both equations like such a way कि डी ब्रोगली ने वेव नेचर लिया. एज पर वेव नेचर, E is equal to h mu, and as per particle nature, E is equal to mc square. सेकेंड इक्वेशन. तो दोनों केस में क्या है? एनर्जी इक्वल है. ठीक है, दोनों केस में एनर्जी इक्वल है. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, h mu is equal to mc square. ठीक है. In the electromagnetic radiations, we have learned that c is equal to mu lambda, or lambda is equal to mu upon c upon mu. Sorry, lambda is equal to c is equal to mu lambda. I'm sorry. We have learned c is equal to mu lambda or lambda is equal to c upon mu. So placing the value of mu here, or mu is equal to c upon lambda. So placing the value of mu here as c upon lambda
इज इक्वल टू mc स्क्वायर, एक सी कैंसिल हो गया, सो वी हैव टू कैलकुलेट दी वेव लेंथ ऑफ एनी लाइट। तो इसको अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई कराऊँ तो ये पूरा mc क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। सो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mc, where h is the Planck constant 6.626 into 10 raised to the power minus 34 joule per second, mass of any particle or the object which you are going to study, and c is the velocity of that object. So you have to learn this equation very carefully क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स एग्जाम पे पूछे जाते हैं। So let us take an NCERT example numerical. The question here is saying that what will be the wavelength of a ball of mass 0.1 kg moving with a velocity of 10 meter per second. ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक बॉल है जिसका मास है 0.1 kg, मास है 0.1 kg, velocity c is given to you 10 meter per second, and you have to calculate the lambda. So as we have studied in the de Broglie equation that lambda is equal to h upon mc. So its value is 6.626 into 10 raised to the power minus 34 upon mass is 0.1 into 10. Clear? So 10 into 0.1 is 1. So 6.626 into 10 raised to the power minus 34 divided by 1 is equal to 6.626 into 10 raised to the power minus 34, and wavelength is given in meter. So this is your answer. So it is such a negligible कि यदि हम टेनिस की बॉल को फेंकते भी है तो हमें उसकी वेव्स का अपीयरेंस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसकी वेवलेंथ इतनी छोटी होती है। Okay, so today your topic over here. Now in the next topic what we are going to study, you just remember we are going to study Heisenberg uncertainty principle. Heisenberg uncertainty principle, which is very important, and also we are going to start our the most important topic of this chapter, that is quantum number. We are going to start in our next class. So hope you will not forget to watch this class, and if you have any doubt you can ask me directly. You solve the numericals from the textbook regarding the till now the numerical section has been over, so you have to solve all the numericals from your textbook. If you have any doubt you can ask me, and don't forget to comment your name in the comment section. Take care.